لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ کو پتا کہ میں نے اتنی دیر بعد ویڈیو بنائی ہے تو کچھ آج زیادہ دیر کی بناؤں گا، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک واقعہ دکھانے جا رہا ہوں، تو وہ واقعہ آپ دیکھیں اور اس واقعہ کو سمجھیں۔ کرتے ہیں کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو میں راستے میں آنے والی ٹائر ورکشاپ پر رک گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا گاڑی کے ٹائر کو پنکچر لگانے کے لیے موجود تھا اور مجھ سے پہلے وہاں پر ایک ہی بندہ موجود تھا جس کی کار کا پنکچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اس دوران گاڑی سے نکل کر وہاں موجود کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنکچر کی دکان کا بوڑھا مالک پہلے سے وہاں بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہو گئی اور میں نے بے تکلفی سے کہا، واہ انکل مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں بھی سوٹا لگا لوں؟ وہ ہنس کر بولا، ست بسم اللہ۔ اس نے حقہ مجھے تھما دیا اور میں نے پہلا ہی کش لگایا تھا کہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، پتر جی حقہ پینا مزدوروں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے۔ حقے کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اب کون سی جان انکل جی؟ میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ واقعی پہلے والی خوراکیں اور ورزشیں کہاں پتر جی؟ اس کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، بدن کسرتی، تہبند پہنا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک لفظ بولتا، اللہ دی شانہ ویکھو۔ لگتا تھا کہ یہ اس کا تقیہ کلام تھا۔ اس سے بے تکلفی شروع ہو گئی اور پرانا زمانہ یاد کرنے لگے۔ دیسی لوگوں کی دیسی باتیں، باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنا دیا، انتہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ یہ واقعہ اسی کی زبانی سنیے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں اس وقت 10 سال کا تھا، سمجھ لو کہ 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ رب دیاں شانہ ویکھو، میرے دادے کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے زمینداروں نے اپنی زمین پر کنواں کھودنے کے لیے کچھ مزدور بلائے جو کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک روز کنویں کی ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا، منصور مٹی تلے دب گیا ہے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کرنے کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہیں لگا کہ شاید انہیں مغالطہ لگ گیا ہے، وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو۔ اس لیے انہوں نے کنویں میں مٹی ڈال کر اسے دوبارہ بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ پر کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا اور نہ اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا کہ کوئی انجانے میں اس میں گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 25-30 سال بعد وہ زمیندار فوت ہو گیا تو اس کی اولاد نے کافی زمینیں بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے زمینیں آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی، تو انہیں بھی ایک کنواں کھودنے کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے اسی جگہ پر کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا اور ایک سانحہ رونما ہوا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا ملا، تو وہ حیران ہو گئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسی؟ دوسرے مزدور بھی پریشان تھے۔ مالکان کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں سے دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ اگر یہ دھوتی کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر پہلے کبھی کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ ہاتھوں اور بیلچوں سے کھدائی جاری رکھی تو اچانک کنویں کے ایک جانب ایک چھوٹی سی سوراخ نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ ان کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک بڑھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی جن بھوت ہے، لیکن جب مزدوروں نے مالکان کے ساتھ مل کر اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے پورے بدن کا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس نے جب اتنے انسانوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ کسی سمجھدار آدمی نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دیں
क्योंकि इस इंसान से हवा और मौसम बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि न जाने ये पता नहीं कब से यहाँ पड़ा हुआ था। उसको 10 दिन तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। रुई में दूध लगाकर उसको चटाया जाता रहा। 10 दिन के बाद जब वो इंसान काफी होश में आ गया तो उसने इंकशाफ किया कि बहुत अरसा पहले यहाँ कुआं खोदते हुए वो मट्टी तले दब गया था। पुराने लोगों से जब पूछ-गुछ की गई तो उनमें से एक मजदूर मिल गया जो उस वक्त हादसे के वक्त मौजूद था। उसने तस्दीक की कि हाँ, ऐसा वाकया हुआ था और एक मंजूर हुसैन नामी मजदूर लापता हो गया था। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है कि 35 साल तक मट्टी तले दबा हुआ इंसान जिंदा हो? जिंदा रहने के लिए तो हवा, पानी और खुराक की जरूरत होती है। ये बड़ा हकीकत पसंदाना सवाल था कि आखिर बिना खुराक के, बिना हवा और पानी के कोई शख्स कैसे जमीन की तह में जिंदा रह सकता है? उस आदमी ने सुना तो कहा, मैं ही मंजूर हुसैन हूँ। बस ये मेरे सोने अल्लाह की शान है कि वो पत्थरों में भी मुझको रिज्क पहुंचाता था। वो मनों हजारों मट्टी तले भी मुझे खुराक पहुंचाता था। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने साल तक मानो मट्टी तले दबा रहा, लेकिन एक बात का मुझे इल्म है कि मैं कभी भूखा नहीं सोया और ना ही मुझे कोई वक्त गुजरने का इल्म है। मैं रोजाना देखता था कि एक गाय सुबह सवेरे आती और अपने थन मेरे सामने कर देती। मैं उसके थनों को मुंह लगाकर दूध पी लेता था। वो दिन में एक बार आया करती थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था। और आज उस अल्लाह की शान देखिए कि मैं दुनिया में वापस आ गया हूँ। इस वाक़े के 10 साल बाद मंजूर हुसैन और जिंदा रहा और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। बुजुर्ग ने बताया, इस वाक़े को गुजरे तकरीबन 150-200 साल हो चुके हैं, लेकिन ये वाक़या मुझे अल्लाह की शान की याद दिलाता है। सच कहा है किसी ने कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह जब चाहे जिसे मौत दे और जिसे चाहे जिंदा रखे। बेशक वो इस दुनिया के बनाने वाला और पालने वाला है। वो पत्थर में रहने वाले कीड़े को भी रोजी देता है। वो जंगलों में रहने वाले जानवरों को भी रोजी देता है। उसी तरह से अल्लाह ताला ने मंजूर हुसैन को मनो मट्टी तले रोजी भी फराहम की, उसको रिस्क भी दिया, क्योंकि उसके मरने का जो वक्त अल्लाह ने मुतय्यन किया था वो अभी आया नहीं था। तो दोस्तों, इस तरह के वाकयात बेशक हमें अल्लाह ताला की वहदानियत का यकीन दिलाते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों के तौर पर ये हमें नजर आते हैं। और वो बूढ़ा फिर से कहने लगा, वेखो अल्लाह दिया शाना, मना मट्टी तले दबिया मंजूर हुसैन एक बारी फिर दुनिया च आ गया। वेखो अल्लाह दिया शाना। तो दोस्तों, बेशक अल्लाह की शान बहुत बुलंद है और वो जब जिसे चाहे पैदा करे, जब जिसे चाहे मौत। तो हमने वाकया तो देख लिया होगा। तो अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिए। जो एक बैल है वो कितने का होगा मुझे तो नहीं पता, पर मैं अंदर में बता सकता हूँ। 1 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख का हो जाएगा। तो अब मैं जो आपको बैल कहने जा रहा हूँ वो है 60 लाख का, 70 का भी है, 80 का भी है और 1 करोड़ का भी है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे ईद उल अजहा करीब आती जाती है, पाकिस्तान के लोग कुर्बानी के लिए और जशीले होते नजर आएंगे। लेकिन हर साल कुर्बानी के जानवरों की कीमत इतनी बढ़ती जा रही है कि कुर्बानी आम आदमी की इस्तात से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। मगर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो महंगे तरीन जानवर खरीद रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की मंडियों में अब तक के बेचे गए 10 सबसे महंगे बुल दिखाएंगे, जिनकी कीमत सुनकर आपके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। लेकिन वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10, सिब्बी भगनारी। दोस्तों, सबसे पहले आप सिब्बी भगनारी से मिलिए। ये बुल सिब्बी के बादशाह के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि भगनारी ने सिब्बी मेले की परेड में पहली पोजीशन हासिल की थी। सिब्बी मेला पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में मुनक्किद किया जाता है, जहां हर साल पाकिस्तान भर से लोग अपने अपने जानवरों को मुख्तलिफ खेलों में शामिल करने के लिए लाएंगे। और इस बार तो सिब्बी भगनारी बुल के 8 फुट लंबे कद, भारी जिसामत और खूब
खूबसूरत नैन नक्श ने सिब्बी मेला लूट लिया था। इस जानवर के मालिक का कहना था कि रोजाना 20 किलो दूध और देसी घी इसकी खुराक का लाजमी हिस्सा है, जिससे इसका वजन 25 मन तक पहुंच चुका है और इसकी फरोख्त 60 लाख तक देखी गई है। नंबर 9, लाली। दोस्तों अब हम आपको कराची के सुरमा वाला कैटल फार्म में मौजूद एक निहायत खूबसूरत और सेहतमंद बैल दिखाते हैं जो बरहमन नस्ल से ताल्लुक रखता है। लाली की खालिस भूरी रंगत और चमकती खाल इसकी खूबसूरती को बढ़ा रही है। ये जानवर उस खुश नसीब के पास गया है जिसने इसे 65 लाख की कीमत में खरीदा है। नंबर 8, प्योर चोलिस्तानी। दोस्तों हर साल सुरमा वाला कैटल फार्म में ऐसे शानदार कुर्बानी के लिए बैल लाए जाते हैं कि खरीदने वाला जिस बैल को भी देखेगा पीछे वाले बैल को भूल जाता है। इसी तरह यहाँ पे लाया गया ये जानवर जिसका नाम प्योर चोलिस्तानी है, इसका वजन 25 मन तक होगा और सिर्फ यही नहीं बल्कि प्योर चोलिस्तानी का प्योर सफेद रंग इसकी शान है। प्योर चोलिस्तानी सुरमा वाला कैटल फार्म का अब तक का बेचा गया सबसे तीसरा महंगा जानवर है जिसकी कीमत 65 लाख तक फाइनल हुई थी। नंबर 7, साहीवाली। दोस्तों सोहराब गोत काऊ मंडी के सबसे मशहूर फार्म अफरीदी कैटल फार्म के जानवर भी किसी से कम नहीं हैं। इसके तकरीबन हर बैल की कीमत आसमान को छूती नजर आएगी, लेकिन यहाँ नजर आने वाला हर बैल अपनी मिसाल आप है। जैसे कि हम आपको साहीवाली से मिलवाते हैं जिसकी भारी झालर, लटकते हुए कान, ढीला जिस्म और इसके अलावा बड़ी नाक इसकी पहचान है। साहीवाली बैल का आपको ज्यादातर अगला और पिछला हिस्सा काला ही नजर आएगा। इसके मालिक का कहना है कि वो इसे रोजाना देसी चारा और काजू बादाम पिस्ता खिलाता है। साहीवाली का वजन 55 मन से कम नहीं और इसको खरीदने वाले ने भी कंजूसी नहीं की थी जो इसे 75 लाख में खरीद कर ले गया। नंबर 6, फखरे चोलिस्तानी। दोस्तों इस तरह अब हम आपको अफरीदी कैटल फार्म की एक और रौनक दिखाते हैं जिसका नाम फखरे चोलिस्तानी है। जब इसके मालिक से इस बैल के नाम के पीछे की वजह पूछी गई तो उसका बताना था कि ये अब तक का चोलिस्तान का सबसे बड़ा बछड़ा है। इसके अलावा इसकी खूबसूरती का पूरे चोलिस्तान में कोई मुकाबला नहीं। आप इस वीडियो में देखकर इसके मालिक की बात से इत्तफाक भी करेंगे क्योंकि सफेद रंग पे ब्राउन डॉट्स का मालिक अभी तक किसी और बैल की जीनत नहीं बना है। फखरे चोलिस्तानी भी 75 लाख में बेचा गया था। नंबर 5, बादल। दोस्तों सुरमा वाला कैटल फार्म में हम आपको एक और बुल से मिलवाते हैं जिसका नाम बादल है और जब बादल फार्म में इंटर हुआ तो बादल आया और पूरी गूंज से छा गया। ये भी बरहमन नस्ल का बैल है। इसके ऊपर की खाल भूरे रंग की है और इसके चलने का स्टाइल ऐसा है जैसे ये मटक मटक के चल रहा हो। सुरमा वाला कैटल फार्म में इस बैल की कीमत 80 लाख तक फाइनल हुई जिसे इसके नए मालिक अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले गए। नंबर 4, जैस्मीन। दोस्तों अफरीदी कैटल फार्म के साहीवाली और फखरे चोलिस्तान को तो आप देख चुके होंगे, लेकिन इस फार्म का जो अब हम आपको बैल दिखाने जा रहे हैं आप इसे देखकर पिछले सब बैल भूल जाएंगे। जैस्मीन की खूबसूरती का यहाँ कोई मुकाबला नहीं। ये बैल जब चल रहा होता है तो इसकी भारी झालर और इसकी चाल का अंदाज इसके रौब को बढ़ाता जाएगा और यकीनन आप स्क्रीन पर जैस्मीन का भारी और कदो कामत वाला जिस्म और इसकी खूबसूरत खाल देखकर इसके शहर में जकड़ते जा रहे होंगे। इस बैल को तो अपनी जगह से हिलाने के लिए भी इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और फिर इस बैल के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे, मगर ये आखिरकार 85 लाख की कीमत तक फाइनल हुआ और इस कैटल फार्म से निकलकर किसी और घर का मेहमान बन गया। नंबर 3, सुल्तान। दोस्तों अब हम आपको अफरीदी कैटल फार्म में लाया गया एक और बैल दिखाएंगे जिसका नाम सुल्तान है और हमारी ये वीडियो देखकर आप मान जाएंगे कि वाकई ही इसका नाम सुल्तान के अलावा कुछ नहीं हो सकता था। सुल्तान का प्योर काला रंग और चमकती हुई खाल इसकी शानो शौकत को बढ़ा रही है। सुल्तान कोई आम बैल नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ बैलों की ब्रीडिंग की पैदावार है। ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा बैल देखा गया है और सुल्तान जब दौड़ेगा तो हर एक पे अपना रोब छोड़ जाएगा, लेकिन सुल्तान को भी इसके भारी जिस्म और खूबसूरत होने की वजह से 85 लाख की कीमत में ही बेचा गया है।
नंबर 2, केटू। दोस्तों, सुरमा वाला के अब तक हम आपको बहुत से बेहतरीन कुर्बानी के जानवर दिखा चुके हैं, लेकिन अब हम आपको इस फॉर्म का अब तक का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बुल दिखाएंगे, जिसने केटू के नाम से शोहरत पाई क्योंकि इसका कद बाकी तमाम जानवरों से काफी बड़ा है। केटू की नस्ल भी ब्राह्मण है और इसका वजन किया गया तो ये 45 मन का बैल मालूम हुआ। केटू को लोग दूर दूर से देखने आते रहे और इस फॉर्म में ये सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। केटू कराची किंग के नाम से भी काफी मशहूर हुआ है। ये न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान में भी महंगा तरीन जानवर बेचा गया है, जिसकी कीमत पूरे 1 करोड़ तय पाई थी। और आप अंदाजा लगाएं कि इसको खरीदने वाला कितना खुशनसीब होगा। नंबर 1, कुतुब मीनार। दोस्तों, हमारी आखिरी वीडियो उस बैल की है जिसको कराची की सोहराब गोत मंडी में रखा गया था। इसका नाम कुतुब मीनार है क्योंकि इसके कद और इसके भारी भरकम जिस्म ने देखने वाले को हैरान कर दिया है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि इसका वजन 1600 किलोग्राम से भी ज्यादा देखा गया है। कुतुब मीनार भी अब तक के सबसे महंगे बेचे गए जानवरों की लिस्ट में टॉप पे है क्योंकि ये खूबसूरत बैल 1 करोड़ की कीमत में बेचा गया था और इसका अकेला हार ही 5 लाख का पहनाया गया था, जो कि सच में बड़ा ही हैरान कुन है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान में कुर्बानी के मौके पे बेचे गए 10 सबसे महंगे तरीन बुल्स, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ गए होंगे। अब यकीन आया। तो गाइस, लास्ट में मैं आपको पहेलियां दे रहा हूँ और पहेलियों को आप देखें, समझिए और उनका आंसर कमेंट करें। तो चलें पहेलियां स्टार्ट करते हैं। वेलकम। एक बात तो बताएं, आप कितने ज़हीन हैं? आइंस्टाइन से ज़्यादा? तो आज पता चल जाएगा। मैं आपको आज मज़े मज़े के रिजल्ट दूंगा। अगर आपको उनका आंसर पता हुआ तो आप 7 सेकंड के अंदर अंदर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक चीज़ चलते चलते थक जाती है, लेकिन अगर उसकी गर्दन काट दें तो वो दोबारा चलने लगती है। पेंसिल। दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? शेर, जंगल का बादशाह। आप 3 सेब 2 वालिदा और 2 बेटियों में कैसे तकसीम करेंगे जबकि हर किसी को पूरा पूरा सेब देना है? एक नानी है, एक माँ है और एक बेटी। नानी माँ की माँ है और माँ नानी की बेटी। इस तरह यहाँ 2 माएँ हैं और 2 बेटियाँ, तो आप हर किसी को एक एक सेब दे देंगे। वो कौन सी जगह है जहाँ जाते तो 10 लोग हैं लेकिन वापस 9 लोग आते हैं? कब्रिस्तान। उस चीज का नाम बताएं जो जिंदा हो तो दफना देते हैं और मर गया तो निकाल लेते हैं। पौधा। पाकिस्तान के किस शहर को लिखते वक्त 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं? पाकपतन शरीफ। चांद के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो सारी जिंदगी एक ही साइज का रहता है? आंखें। वो कौन सी चीज है हमेशा नीचे आती है कभी ऊपर नहीं जाती? बारिश। इस चीज का नाम बताएं जो गर्म करने पर जम जाती है। अंडा। वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है?
चमगादड़। सब्ज रंग का पत्थर नीले समुद्र में फेंकेंगे तो क्या होगा? सीम पर गीला होगा और डूब जाएगा। वो कौन सा जानवर है जो लोहे की किले चमका सकता है? मगरमच्छ। इस चीज का नाम बताएं जो दोनों से गंदी होती है। पानी। इंसान मार्च में फरवरी से ज्यादा खाना क्यों खाता है? क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं और मार्च में 31। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।